اچھا جی، کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یسوع مسیح کو کیوں، مطلب خدا کو بیٹے کی صورت میں اس زمین پر کیوں آنا پڑا؟ ویری گڈ، ویری نائس، بہت اچھے جواب، زبردست۔ اچھا اب میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھوں گا۔ پیدائش پہلا باب اور 26ویں آیت، اس کو غور سے پڑھنا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ آمین۔ جب انسان کو خدا نے بنا دیا اور زمین کا سارا اختیار جو ہے وہ کس کے حوالے کر دیا؟ انسان کے حوالے کر دیا۔ سارا اختیار زمین کا، تمام پرندے، تمام چوپائے، جو بھی جاندار ہیں، ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ خدا نے کیا کیا؟ انسان کے حوالے کر دیا، اور خود کو بھی اس سے ایکسکلوڈ کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے یہ اختیار، زمین پہ جو بھی کام ہوگا وہ انسان کے ہی سبب سے ہوگا۔ اسی لیے خداوند کو اس زمین پر اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا انسانوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ خدا ڈائریکٹلی اس زمین پر کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند نے ایک قانون بنا دیا۔ جو بھی خدا کے منہ سے بات نکلتی ہے، جو بھی خداوند کلام کرتا ہے، وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ اب یہ قانون بن گیا کہ خدا نے زمین کا سارا اختیار انسان کے حوالے کر دیا، اور خود کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا کہ اگر خدا یہاں سے کہہ سکتا تھا کہ زمین کا سارا اختیار ہمارے پاس ہے، لیکن سارا اختیار جو ہے وہ خداوند نے انسان کو دے دیا، اور خود کو اپنے سے، مطلب اس اختیار سے ایکسکلوڈ کر دیا، اور زمین پر سارا اختیار انسانوں کے پاس آ گیا۔ اب انسان ایکچوئل میں ہے کیا؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ سوچا کبھی اپنے بارے میں ہم ایگزیکٹلی ہیں کیا؟ ہم لوگ دراصل روحیں ہیں جو اس زمین پر بھیجی گئی ہیں، اور اس زمین پر روحوں کو بدن دیا گیا ہے، تاکہ یہ جو بدن ہے نا ہمارا، یہ بڑی طاقتور چیز ہے جو ہمیں اس زمین پر لیگل قرار دیتی ہے۔ لیگل کا پتہ ہے، جو قانونی طور پر اس زمین پر رہنے کا جو حق ہے وہ جسم والوں کو ہے۔ جس کے پاس جسم ہے اور جس کے اندر روح ہے، وہ اس زمین پر لیگل ہے، اس زمین پر اس کے پاس اختیار ہے۔ اب انسان ایکچوئل میں ہے کیا؟ انسان کمبینیشن ہے مٹی اور روح کا۔ مٹی اور روح جب آپس میں بنتے ہیں تو وہ ایک انسان کمپلیٹ بن جاتا ہے۔ جو ڈسٹ ہے، جو زمین کی مٹی ہے، وہ اور روح جب اکٹھے ہوتے ہیں تو تب وہ ایک مکمل طور پر باڈی بنتی ہے، تب وہ ایک مکمل طور پر انسان بنتا ہے، اور اس انسان کا اختیار اس زمین پر ہوتا ہے، اور زمین پر لیگل رائٹ، زمین پر قانونی حق جو رہنے کا ہے وہ انسانوں کو دیا گیا۔ جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد آدم کو یہ اختیار دیا کہ یہ ساری زمین پر تیرے پاس ہی اختیار ہے، اور تو ہی اس زمین پر قابض ہے، اور تیرا ہی اس زمین پر اختیار ہے۔ اب ہمیں یہاں تک سمجھ یہ آیا کہ جو زمین پر ہے، جس کے پاس جسم ہے، وہ اس زمین پر لیگل ہے، اور جو بغیر جسم کے ہے، جیسے بری روحیں جو ہیں ان کے پاس باڈی نہیں ہے، ان کے پاس جسم نہیں ہے، وہ اس زمین پر انلیگل ہے، وہ اس زمین پر غیر قانونی ہے، اور وہ کرتی کیا ہے؟ جو روحیں ہیں، جو بری روحیں ہیں، وہ آپ کے اور میرے اور ہم جیسے بہت سے انسانوں کے جسم کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، روزمرہ کی زندگی میں
झूठ की स्पिरिट शैतान क्या करता है, वो भी एक रूह है, उसको भी अगर देखें वो भी एक रूह है, वो भी जमीन पर लीगल नहीं है क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है। अभी तक हमने सीखा लीगल वो है, कानूनी हक उसका है, मतलब कुदरती तौर पर वो इस जमीन पर लीगल है जिसके पास बॉडी है, जिसके पास जिस्म है। मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन दिस अर्थ वी हैव आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त इस जमीन पर रहने के लिए हथियार है और हमारे पास एक बहुत जबरदस्त चीज है। अब बुरी रूहें जो होती हैं, अबलीसी ताकतें जो होती हैं, वो हमारे जिस्मों को इस्तेमाल करती हैं। अब झूठ बोलने की जो स्पिरिट है वो इंसानों के अंदर होके अपना काम कर जाती है और माशरे में इतनी बुराइयां फैला देती है। इसी तरह ज़नाकारियां देख लें, इसी तरह कत्ल गारत देख लें, मुख्तलिफ किस्म की जो स्पिरिट्स हैं वो इंसानी जिस्म को इस्तेमाल करती हैं ताकि हम इस जमीन पर लीगल हो सकें और हम इस काम को जो है वो बखूबी पूरा कर सकें। अब खुदावन ने ये सारा अख्तियार इंसान के हवाले किया हुआ है। जमीन का जो सारा अख्तियार है वो हमने पढ़ा कि वो तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रहते हैं अख्तियार रखे। कौन? आदम और आदम की नस्ल, हम लोग, हमारा अख्तियार इस जमीन पर है। लेकिन हम अपने इस इख्तियार को भूल चुके हैं, हम अपने इस इख्तियार को खो चुके हैं। हम अपने आप को बहुत कमजोर और हम अपने आप को बहुत ही मजबूर किस्म का इंसान इस जमीन पर समझते हैं, हालांकि हम बहुत ताकतवर इंसान हैं। अब हुआ क्या? अब जब हम वापस बागे अदन में जाते हैं, देखते हैं तो इंसान के बारे में हमने थोड़ा सा सीखा कि इंसान है क्या। इंसान एक्चुअली कॉम्बिनेशन है मट्टी का और रूह का। जो रूह खुदा ने दी है, हम सब रूहें हैं और हम मरेंगे नहीं। लास्ट संडे पास साहब यही जिक्र कर रहे थे कि इंसान को सबसे ज्यादा खौफ है कि वो मर जाएगा, मौत आ जाएगी उसको। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंसान, हम लोग जो है हम मरेंगे नहीं। हम सिर्फ, हमारा ये जिस्म हमसे जुदा हो जाएगा, मट्टी के साथ मिल जाएगी और हम रूह हैं, हम कहीं और ट्रांसफर हो जाएंगे, हम मरेंगे कभी भी नहीं। ये अपने जहनों से बात निकाल दें, हम में से कोई भी नहीं मरेगा। हम ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से किसी और जगह पर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बदन जब हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो कानूनी हक है वो जमीन पे वापस चला गया और हम इस जमीन पर इलीगल ठहरेंगे। और जब हम इलीगल हो जाएंगे, हमें वापस उसी देश जाना पड़ेगा जहां से हम आए हैं या जहां से हम निकले हैं, हम वापस उसी जगह पर चले जाएंगे। तो ये एक्चुअली इंसान है, ये इंसान की हकीकत है। और इसी तरह कोशिश करें कि अपने जिस्मों को जो है अबलीस को इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सजा जो है वो ऑलरेडी सांप ने बागे अदन में इसमें भुगती है। हुआ क्या था, जब अबलीस बागे अदन में पहुंचा, हवा को फल दिखाया और फल खाया। ये सारी कन्वर्सेशन अबलीस ने खुद नहीं की, अबलीस ने सांप के अंदर होके की। हुआ क्या कि सांप का जो जिस्म था वो इस्तेमाल हुआ। अबलीस ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया और उसे कहा कि हवा के साथ जो भी डीलिंग थी, जो भी बातचीत थी, जो भी बिजनेस था, वो उसने उसके साथ डन किया और वो फल खाया। और खुदा को पता चला, हालांकि खुदा देख रहा है, खुदा सब कुछ देख रहा है कि ये आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन खुदा उधर आ नहीं पा रहा, क्योंकि खुदा अपने ही कानून को तोड़ेगा नहीं। क्योंकि खुदाबंद ने कहा है कि जमीन का सारा अख्तियार तुम्हारे पास है, मैं जब तक बॉडी या मैं जब तक जिस्म में आऊंगा नहीं, मैं तब तक वहां पर कुछ नहीं कर सकूंगा। या अगर मैं खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं तो मैं खुदाबंद के बिहाफ पर काम करूंगा, जैसे नबियों और रसूलों ने किया। अब हुआ क्या कि जब बागे अदन में सांप ने वरगलाया, अबलीस ने एक्चुअली सांप की बॉडी को उधार लिया, उससे कहा कि मुझे तेरे जिस्म को इस्तेमाल करना है ताकि तू हवा के साथ ये सारी कन्वर्सेशन कर, सारी बातचीत कर। उससे पहले सांप जो थे वो चलते भी थे, उससे पहले हो सकता है सांप उड़ते भी थे, लेकिन जब से ये सारी कन्वर्सेशन हुई और खुदावन ने इसको देखा कि यार ये सारा निजाम जो है वो चल रहा है, सांप, शैतान सांप को किस तरह से वरगलाया और सांप ने आगे औरत को किस तरह से कहा कि ये फल खा और गुनाह कर, और सारी जो है वो दुनिया का निजाम जो है वो दरम बरम हो गया। अब फल खाने के बाद
जब फल खा लिया, खुदावन ने सारे निजाम को देखा कि यार ये सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला हो रहा है, इस औरत के वसीला से जो थी ये गुनाह सरजद हुआ। और अबलीस उस टाइम जो सांप था उसको भी खुदा ने सजा दी कि तू आज के बाद सारी जिंदगी पेट के बल चलेगा, रेंगेगा, अब तेरा चलना फिरना खत्म, तेरा हर चीज खत्म, अब सारी जिंदगी तुझे सजा है कि तू पेट के बल रेंगेगा। हुआ क्या कि उसने अपने बदन को शैतान के लिए इस्तेमाल कर दिया। आज हमारा जिस्म भी मुख्तलिफ जगहों पर अबलीस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हम कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, हम कदम कदम पर एक दूसरे की दिल आजारी कर रहे हैं, हम कदम कदम पर एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं, हम कदम कदम पर ज़नाकारियों की कोशिश कर रहे हैं, हम हर बुरी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में अबलीस हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी सजा खुदा ने सांप को दी कि तू आज के बाद रेंगेगा। और हमारे लिए पता नहीं कितनी खतरनाक सजा हो सकती है अगर हम अपने जिस्म को अलाउ करेंगे कि वो शैतान के लिए इस्तेमाल हो। अपने जिस्मों को, अपने जिस्मों से खुदावंद के जलाल को जाहिर करो। हर एक काम, हर एक बात जो भी करते हो बड़े केयरफुल होके कि मेरी बॉडी से जो है वो अबलीस को ना जलाल मिले, मेरी बॉडी से शैतान कोई काम ना ले जाए। अब जब खुदा ने देखा कि अब औरत के जरिया से गुनाह आया, अब खुदावन ने कहा कि सेम इसी औरत की नस्ल को मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं इस जमीन पर एक जिस्म लूंगा और मैं इस जिस्म के बाद तेरे सर को जो है वो कुचल डालूंगा। अब हुआ क्या कि सारे पुराने अहदनामे में यही हमें मिलता रहा कि मैं आऊंगा। और फिर यसाया की जो यसाया 7 बाब और 14 आयत को अगर हम खोलते हैं, बल्कि निकालें जरा, यहां पर यसाया ने, क्योंकि पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्दूस जो था वो नबियों पर जोर से नाजिल होता था और जो भी कलाम करता था वो कलाम करके वापस चला जाता था, वो इंसानों के जिस्म में आता नहीं था, क्योंकि जिस्म जो थी वो क्या था जी, गंदगी थी और गंदगी के अंदर पाकरू कभी भी ठहर नहीं सकता। अब जब तमाम तर नबियों के पुराने अहदनामे में मैं आऊंगा मुख्तलिफ तौर पर बताया गया, अब यसाया ने क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दी और कहा लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। अब जब तमाम तर बातें होती गई, यसाया नबी ने एक क्लियर हमें इंडिकेशन दे दी, एक क्लियर हमें निशान दे दिया और कहा लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ। आमीन। और उसके बाद आगे हम देखते हैं 9वें बाब की 6ठी आयत, इसलिए लिखा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। हमारे लिए क्या हुआ जी, एक लड़का तवल्लद हुआ, अभी बेटा नहीं है, एक लड़का तवल्लद हुआ। मतलब एक बॉडी खुदावंद ने अपने लिए तैयार करनी है, और वो बॉडी क्या है जी, वो बॉडी है यीशु मसीह नासरी की। एक लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ, और मरियम को भी एक यही पैगाम दिया गया, मरियम को तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना जी, यीशु रखना। जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना, जो खुदावंद ने अपने लिए एक बॉडी तैयार की है जमीन पे आने के लिए, ताकि लीगल राइट्स जो है खुदा अपने वादे को ना तोड़े, बगैर तोड़े हुए इस जमीन पर आए, ताकि अबलीस के सर को कुचले और हमारे लिए नजात का मुकम्मल इंतजाम कर सके। तो फिर खुदावंद ने क्या किया, फरिश्ता ने हुक्म दिया कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसका नाम क्या रखना जी,
यीशु रखना। और यीशु मसीह मुकम्मल बॉडी है और मसीह जो है वो खुदा है, एलोहीम खुदा, यीशु जो बॉडी है और एलोहीम खुदा मिलकर आपस में यीशु मसीह जो थे वो चरनी में आए और हमारे लिए प्रॉपर नजात का इंतजाम किया। इस तरीके से खुदाबंद को जो है वो दुनिया में आना पड़ा ताकि जो आदम में गुनाह किया था औरत ने, जिस औरत के जरिए से गुनाह हुआ था, उसी मरियम की, औरत ही की नस्ल से, मुकद्दसा मरियम से यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए, इस दुनिया में पैदा हुए, इस दुनिया में उन्होंने बदन लिया, यानी यीशु का बदन इस्तेमाल हुआ और मसीह की कुदरत, यीशु मसीह नासरी ने अपनी इस कुदरत से इस मिलाप को मुकम्मल किया, यानी यीशु मसीह नासरी जो कि 100% ह्यूमन बीइंग और मुकम्मल तौर पर कामिल खुदा, कामिल बशर और कामिल खुदा जो थे वो चरनी में जन्म लेकर आए हमारे दरमियान, ताकि हमारे लिए नजात का एक मुकम्मल दरवाजा खोल सकें, ताकि हमारे लिए नजात का एक मुकम्मल इंतजाम कर सकें। इस तरह से ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस चला और खुदाबंद ने अपने वादा को पूरा किया और हमारे दरमियान इंसानी शक्ल, इंसानी वजूद लेकर हमारे दरमियान आए ताकि अबलीस के सर को कुचले। और अब अबलीस के पास टेंशन है, परेशानी है कि ये हो क्या गया है, क्योंकि खुदावन ने तो इस जमीन पर आना नहीं था, खुदा ने तो सारा अख्तियार आदम को दे दिया था। आज भी खुदा लोगों को ढूंढता है कि हम खुदावन के लिए इस्तेमाल हो सके। खुदावंद हमारे जरिया से काम करना चाहता है, खुदावंद हमारे जरिया से आज भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हमने अपने आप को शैतान के लिए वक्फ कर दिया हुआ है। आजकल बेतहाशा शादियों का सीजन चल रहा है और बहुत सी शादियों में जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ और वहां पे मुझे देखने को मिला कि बहुत सी एल्डर और बहुत से डिकन भी डांस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को खुदावंद के लिए नहीं अबलीस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा शायद 2 मिनट के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज बहुत बुरी चीज है। आप अपने जिस्म को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सजा सांप आज भी भुगत रहा है। उसने अपने जिस्म को शैतान को इस्तेमाल करने दिया और आज तक वो पेट के बल रेंगता चला रहा है। तो इस काम से अवॉइड करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने आप को देखें कि मेरा बदन खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मेरा जिस्म से अबलीस के कामों को जलाल मिल रहा है। और खुदावंद ने जब आपको इस जमीन पर रखा है, आपको एक खूबसूरत और एक जबरदस्त अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी आपके पास है, ताकत खुदावंद की इस्तेमाल होती है। आपने अपने मुंह से कहना है और खुदावंद ने वो करना है, और ये सब चीजें होंगी कब? ईमान के साथ। जब हम ईमान से किसी चीज को कहेंगे वो हो जा। अब अगर मैं आपको लेकर चलूं वापस, जब बनी इसराइल को मूसा लेकर आ रहे थे और पीछे बेतहाशा फौजें आ रही थी और सामने समुंदर था और पीछे फौजें थी और बनी इसराइल बीच में थे और समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है, लोग परेशान थे, लोग मुश्किल में थे। अब वहां पर भी मूसा जो था खुदावंद से दुआ करने लगे। खुदा ने कहा नहीं, अब दुआ ना कर, अब अपनी लाठी उठा और इसको 2 हिस्से कर। अब अख्तियार किसके पास है? मूसा के पास है। अख्तियार किसको दिया है? मूसा को, इंसानों को अख्तियार दिया है कि तू इसको 2 हिस्से करेगा, ताकत मेरी इस्तेमाल होगी, अख्तियार मैंने तुझे दिया हुआ है। अब तू इसको 2 हिस्से करेगा तो ये 2 हिस्से हो जाएगा, ताकत मेरी इस्तेमाल होगी, अख्तियार मैंने तुझे दिया, उस अख्तियार को इस्तेमाल कर। लाठी उठा और इसको 2 हिस्से कर। तो मूसा ने फौरन लाठी को उठाया और उसको 2 हिस्से किया और खुदावन ने ऐसे उधर से पता नहीं क्या किया, लेकिन दोनों तरफ पानी की दीवारें बन गई और लोग बीच में से गुजरना शुरू हो गए। अब जब लोग चले जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, बनी इसराइल सारे गुजर गए हैं और फिर पीछे देखा कि समुंदर वैसी का वैसे ही है, बीच में खुश्क जगह है और लोग पीछे अभी भी आ रहे हैं, पीछे जो है फिरौन के लोग आ रहे हैं। तो मूसा ने कहा ये क्या सिस्टम है, लोग पीछे आ रहे हैं। खुदा ने कहा खोल के आया, उनको बंद भी कर वापस।
پھر چڑھی تھی. اختیار تیرے پاس ہے, اختیار انسان کو دیا ہے خدا نے, آپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے. آج اسی کے دیے ہوئے اختیار سے آپ اپنی بیماریوں کو ڈانٹ سکتے ہیں, آپ اپنی تنگ دستیوں کو ڈانٹ سکتے ہیں, آپ اپنی مشکلات کو ڈانٹ سکتے ہیں. اسی اختیار کے ذریعہ سے آج اپنے معجزات کو آپ لے سکتے ہیں. اسی اختیار کو استعمال کریں جو خداوند نے آدم کو اس زمین پر دیا. اختیار ہمارے پاس ہے, طاقت میرے خداوند کی استعمال ہوگی. ہم نے مانگنا ہے, ہم نے منہ سے پکارنا ہے, ہم نے کہنا ہے خداوند میرے لیے یہ کر, خداوند میرے لیے ایسے کر. لیکن یہ سب چیزیں ہوں گی کب؟ جب ایمان ہوگا, جب ہمارا فیلوشپ ہمارے خداوند کے ساتھ ہوگا, جب ہمارے بدن ہمارے خداوند کے لیے استعمال ہوں گے. تو آئیں اپنے اپنے اختیاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.